Welcome, my dear friends. Today we shall be talking about the next colligative property, that is the elevation in boiling point, delta TB. Before talking about how elevation in boiling point takes place, I must tell you what is a boiling point of a liquid. So boiling point of a liquid is the temperature at which its vapor pressure, means the vapor pressure of liquid, is equal to the atmospheric pressure. Atmospheric pressure हमेशा fixed होता है normally here in lower reach, that's 1 atmosphere. So atmospheric pressure is 1 atmosphere. जब किसी भी liquid का vapor pressure बराबर आता है to the atmospheric pressure, at what temperature it does, the temperature is called as boiling point. So boiling point is basically a temperature of a liquid at which उस liquid का vapor pressure जो है वो बराबर आएगा to the atmospheric pressure, that's 1 atm. For example, आपके पास एक कंटेनर है, उस कंटेनर में आपने एक लिक्विड रखा है, you have a liquid. अब इस ये जो दिस इज एटमॉस्फेयर हियर, यहाँ पे जो एटमॉस्फेयर है उसका प्रेशर है 1 atm. ठीक, अब इस जो लिक्विड है इसके वेपर्स बनते हैं, बिकॉज इवेपोरेशन इज अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस. जब वेपर्स बनेंगे, सपोज इसके इनिशियली वेपर्स कम होंगे तो प्रेशर विल बी लेसर. सपोज इट इज 0.7 atm एट 25 डिग्री सेल्सियस. अब 0.1 डिग्री इंक्रीज होता है, सो इट बिकम्स 0.8 एटमॉस्फेयर at 50 degrees Celsius. So for every 25 degree rise of temperature, 0.1 atmosphere pressure is increased, because we know that vapor pressure जो है किसी भी liquid का वो proportional होता है to temperature. जितना आप temperature increase करेंगे उसी according जो है उसका vapor pressure भी बढ़ेगा. Now it becomes 0.9 atm at 75 degrees Celsius. It becomes 1 atm at 100 डिग्री सेल्सियस. अब देखिए 1 atm इसका प्रेशर बन गया, वेपर प्रेशर इस लिक्विड का, लेकिन ये इक्वल है टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर बिकॉज दैट्स इक्वल टू 1 एटमॉस्फेयर. सो जब ये बराबर आएंगे, एट व्हाट टेम्परेचर दे डू, दिस टेम्परेचर इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ दैट लिक्विड. आई होप यू अंडरस्टैंड इट. सो बॉइलिंग पॉइंट एक ऐसा टेम्परेचर है किसी भी लिक्विड का, जब उस लिक्विड का वेपर प्रेशर जो है वो बराबर आएगा टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वी कॉल दैट टेम्परेचर एज बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर. Now, what happens once we add non-volatile solute to it? So once a non-volatile solute is added, मैंने आपको already conditions बोल दी है for a property to be colligative. I told you in the previous video that जब हमने जिक्र करा था colligative properties का, I told you solution must be dilute and solute must be non-volatile, and upon freezing only solvent should freeze and there should be no association, no dissociation of solute molecules. वो conditions आपको याद रखनी है, तभी आपको एक property जो है वो colligative बन सकती है. So once a non-volatile solute is added, it is observed that boiling point of liquid rises. Boiling point liquid का जो है वो increase होता है. This increase of boiling point of liquid by the addition of non-volatile solute, we call it elevation in boiling point. ये क्यों elevate होता है? I shall be explaining that right now.
So this increase in boiling point of liquid by the addition of non-volatile solute, जब आप ऐड करते हैं non-volatile solute, boiling point जो लिक्विड का है वो इंक्रीज होता है. इसी इंक्रीज को हम बोलते हैं नाम एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट. सो बॉइलिंग पॉइंट किसी भी लिक्विड का एलिवेट होता है जब आप उसमें डालते हैं नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट. उसका रीजन क्या है? एक्चुअली वेपर प्रेशर जो है वो कम होता है. सपोज हमारे पास एक कंटेनर है, वी हैव अ कंटेनर, इट कंटेन्स सम लिक्विड, it contains some liquid. Now this is the atmosphere over here. यहाँ पे प्रेशर है 1 atm. अब जब इसके वेपर्स बनेंगे, now you are adding basically non-volatile solute to it. So you have added here non-volatile solute. So once you added non-volatile solute, it gets distributed throughout the solution. It gets distributed throughout that liquid to form the solution. जब अब solution बन गया तो क्या हुआ कि solute takes some space at surface also. So evaporation is a surface phenomena. जब वहां पे solute particles भी आएंगे, इसका मतलब ये हुआ कि number of vapors, number of particles, number of solvent molecules at surface are now lesser. Why? Because some space has taken up by solute molecules. Solute molecules are non-volatile, so they will not evaporate. Only the solvent molecules have to evaporate. मतलब ये कि अगर initially इसमें 10 particles थे at surface, so vapor will be because of 10 vapors, 10 particles. अब जब आपने इसमें non-volatile solute ऐड कर दिया तो वहां पे 7 सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स रह गए, जो 3 आए नए, दैट इज द सोल्यूट मॉलिक्यूल्स. सोल्यूट मॉलिक्यूल्स विल नॉट इवेपोरेट, ओनली सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स इवेपोरेट्स. मतलब ये कि यहाँ पे जो वेपर प्रेशर होगा वो कम होगा. ये हमने डिस्कस करा था इन वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड आल्सो, जब हमने रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर पढ़ा था. तो यू हैव नाउ a lesser vapor pressure. Suppose it is 0.6 atm at 25 degrees Celsius. Now what happens? You now increase the temperature to 50 degrees Celsius. 0.1 degree increase होता है तो 0.7 atm बन गया. 75 degrees Celsius तो 0.8 atmosphere बन गया. 100 degrees Celsius it becomes 0.9. Now at 125 degrees Celsius it becomes 1 atm. So when 1 atmosphere is the pressure of vapor pressure of this liquid solution, and it becomes equal to atmospheric pressure at what temperature? 125. So this is called boiling point of solution. Now why solution? Because we have added non-volatile solute into it, so it becomes a solution. So इसका vapor pressure, इसका boiling point जो है that is 125 degree Celsius. लेकिन जब हमने इसी liquid को लिया था as pure, उस वक्त उसका जो temperature था boiling point that was 100 degrees Celsius. So it gets elevated once you add non-volatile solute. The reason behind this is इसका pressure initially कितना था? 0.7 atm at 25 degrees Celsius. लेकिन इसका pressure है that is 0.6 only. Why? Because whenever you add a non-volatile solute into liquid, उसका vapor pressure जो है वो decrease हो जाता है. जब vapor pressure decrease होगा तो it requires more heat so that its vapor pressure then becomes equal to atmospheric pressure to boil that liquid. So this is how vapor pressure, this is how boiling point gets elevated. So reason is actually in decrease of vapor pressure. I hope you understand this, how elevation in boiling point takes place. Now, if TB naught is the boiling point of pure liquid and TB is the boiling point of solution containing non-volatile solute, so then TB will be higher because minus TB naught, it's equal to delta TB, and this is called elevation in boiling point. So delta TB is the elevation in boiling point. आप इसको graphically भी represent कर सकते हैं. So graphically also, अगर आप graph डालेंगे between vapor pressure and temperature, you know it very well. जब आप increase करते हैं temperature, vapor pressure भी increase होता है because more vapors will form. So it will increase like this. So curve will be like this. So this is for solvent, or we can say liquid. अब जब आपने इसी लिक्विड में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर दिया तो वेपर प्रेशर डिक्रीज होता है, तो उसकी कर्व जो है वो नीचे आएगी. इट्स लाइक दिस. सो दिस इज फॉर सॉल्यूशन. नाउ इफ यू टेक दिस प्रेशर हियर एज 1 atm, तो ये जो प्रेशर यहां पे है
इस सॉल्वेंट का, दिस इज बेसिकली द टेम्परेचर कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट, बिकॉज इस टेम्परेचर पे इस कर्व का जो वेपर प्रेशर है दैट इज इक्वल टू 1 atm मींस इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर. सो दिस इज TB not for solvent, and this is the temperature at which its vapor pressure becomes equal to atmospheric pressure. So this is the TB means boiling point of solution. So कितना increase हुआ, यहाँ से increase हुआ यहाँ तक, this is called as delta TB, that is elevation in boiling point. So this is how you can represent it graphically also. You can represent it graphically also. It has been observed that ये जो elevation in boiling point है ये directly proportional है to the molality of solution. So observed that delta TB मतलब elevation in boiling point directly related है to molality of solution, while M is molality or we can say delta TB will be equal to some constant into M. ये जो constant है this is the constant defined for solvent only, defined for solvent only मतलब it depends only on solvent. ये हम define खाली करते हैं solvent के लिए, जैसे हम I want Hafiz factor define करते हैं खाली for solute, इसी तरीके से KB ये constant है, ये define करते हैं हम solvent के लिए, इसका नाम है मोलल elevation constant, मोलल elevation constant, or we can say ebullioscopic constant, ebullioscopic constant. So this is molar elevation constant or ebullioscopic constant. इसका वैल्यू किसके बराबर होता है? So KB is actually equal to M into R TB naught square divided by delta H vaporization into 1000. मतलब ये कि M is the molar mass or we can say molecular mass, R is universal gas constant, TB naught is the boiling point of solvent because it is defined for solvent, delta H is the vaporization of that solvent, and this is the constant 1000 here. So R का वैल्यू जो है, अगर आपने KB का यूनिट क्या रहेगा, KB का यूनिट क्या रहेगा, दैट इज आप KB का यूनिट यहां से निकल सकते हैं. यू कैन डिफाइन KB आल्सो. अगर आप KB डिफाइन करेंगे, सो KB इफ molality is equal to 1 मतलब 1 मोल सोल्यूशन है, देन डेल्टा TB will be equal to KB. सो आप डिफाइन कर सकते हैं KB यहां से भी. सो व्हाट इज KB? KB is basically elevation in boiling point if for elevation, it is the elevation in boiling point for 1 molar solution. एक मोलर सोल्यूशन में कितना एलिवेशन होता है बॉइलिंग पॉइंट का उस लिक्विड का, वी कॉल दैट KB. So KB is defined as the elevation and boiling point of liquid for 1 molar solution. This is how you define KB. अब इसका यूनिट क्या आएगा? यूनिट सीधी बात है डेल्टा TB जो है इट्स अ टेम्परेचर. सो इसका यूनिट है केल्विन, ठीक है. मोलैलिटी इज बेसिकली मोल्स पर kg. Molality is what is molality? It is the number of moles of solute dissolved per kg of solvent. मतलब moles per kg is the unit for M. So you can find the unit for KB. So KB का यूनिट क्या आएगा यहाँ पे दिखाएंगे हम. So KB is equal to delta TB divided by M, that is Kelvin, divided by moles per kilogram. So KB का यूनिट जो आएगा that is Kelvin kilogram per mole. Kelvin kilogram per mole. This is the unit for KB. So it's observed that delta TB जो है वो बराबर प्रोपोर्शनल होता है मोलैलिटी. जितना मोलैलिटी आप इंक्रीज करेंगे उतना एलिवेशन इंक्रीज हो जाएगा. So it's KB times M. KB is a constant defined for solvent only. तो इसका नाम है molar elevation constant और ebullioscopy constant. Its value is equal to this. M is the molar mass, R is gas constant, TB naught is the boiling point of solvent, delta HV is the vaporization of that liquid. अगर delta HV आप एक्सप्रेस करेंगे in calories, तब R का वैल्यू भी एक्सप्रेस करना है in calories, that will be 2 calorie. अगर delta H वेपराइजेशन आप जूल से रिप्रेजेंट करेंगे, तब आपका जो R है that will be 8.314 joules per Kelvin per mole. ये वैल्यू रहेगा. So accordingly you find KB. KB आप अगर आपको डिफाइन करना है तो KB is equal to delta TB for 1 molar solution. So KB can defined as
the elevation at boiling point for 1 molar solution. Unit for kb is Kelvin kilogram per mole, और वो कैन से डिग्री सेल्सियस किलोग्राम पर मोल. उस तरीके से भी जो है आप इसका यूनिट ले सकते हैं. नाउ ये जो एक्सप्रेशन है, दिस इज वैलिड व्हेन द सॉल्यूशन इज डाइल्यूट, solute is non-volatile, and solute do not undergo any kind of association, dissociation, or something compound formation. And number fourth is upon freezing only solvent molecules जो है वो freeze होते हैं, solute particles get trapped in that. I already talked about this in previous video, जिसका लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में भी डाल दी है. अब ये जो इक्वेशन है, दिस विल नॉट बी वैलिड अगर उस सोल्यूट का जो है आपका डिसोसिएशन होता है या फिर एसोसिएशन होता है. सो नाउ इफ सोल्यूट अंडरगोज डिसोसिएशन और एसोसिएशन, अगर सोल्यूट का डिसोसिएशन होता है या एसोसिएशन होता है, तब क्या बनेगा? तब जो है इक्वेशन इज मॉडिफाइड. Equation is modified as, so delta TB will be equal to KB into M into I. So where I is called Van Hoff's factor. I is actually Van Hoff's factor. I is actually Van Hoff's factor. I for dissociation is greater than 1. For dissociation, I is less than 1 for association, and I is equal to 1 for no association or dissociation. ये हमने already discuss करा है. I is basically the measure of dissociation or association of solid particles in solvent. And I जो है ये define किया जाता है, it is defined only for solute. It's defined only for solute. It's defined only for solute. So this is how you basically modify expression if the solute undergoes dissociation or association. That is represented by I, that's Van Hoff's factor. Now we shall be switching on to problems. So किस तरीके के questions आ सकते हैं? So questions can be like, जैसे मैंने relative lowering of vapor pressure मैं भी बता दिया आपको. Questions can be numerical based. न्यूमेरिकल बेस्ड अगर है तो क्या निकालना है? डेल्टा टी बी आपको निकालना होगा, आपको बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन निकालना होगा, आपको आई निकालना होगा. आई के साथ आपको फार्मूला बी निकलेगी कंपाउंड की. यू कैन फाइंड फार्मूला आल्सो. आप कंसंट्रेशन भी निकाल सकते हैं. सो ऑल दीज थिंग्स जो है आप निकाल सकते हैं. ये आएंगे आपको न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस. सेकंड कैटेगरी इज कंसेप्चुअल क्वेश्चंस. कंसेप्चुअल क्वेश्चंस, कंसेप्चुअल क्वेश्चंस में क्या आएगा? आपका डेल्टा टीबी बराबर होता है KB इंटू एम इंटू आई. ठीक, अब जितना आप आई इंक्रीज करेंगे उतना आपका डेल्टा टीबी भी इंक्रीज होगा. इट्स डायरेक्टली रिलेटेड. इसका मतलब ये हुआ टीबी माइनस टीबी नॉट जो है वो भी इंक्रीज होगा, बिकॉज डेल्टा टीबी इज इक्वल टू दिस. अब टीबी नॉट तो फिक्स्ड है फॉर सॉल्वेंट. टीबी नॉट बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट इज फिक्स्ड. Now, boiling point of solution changes depending upon if you change the concentration. So, इसका मतलब ये हुआ जितना इसका वैल्यू इंक्रीज हो जाएगा, TB will increase. This implies TB will increase. मतलब boiling point of solution will increase. So, जितना आप I increase करेंगे, boiling point of solution B increase हो जाएगा. This is important. So, जितना आप I increase करेंगे, उतना boiling point of solution increases. अगर आप I कम होगा, तो boiling point of solution B कम होगा. Next is आई अगर आप इंक्रीज करेंगे तो कंसंट्रेशन, नॉट आई, अगर आप एम इंक्रीज करेंगे, मोलैलिटी ऑफ इंक्रीज करेंगे, तब बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन बी इंक्रीज होगा. सो इंक्रीजिंग मोलैलिटी इंक्रीज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन बिकॉज एलिवेशन भी इंक्रीज होगा. तो अगर आप आई इंक्रीज करेंगे, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन बी इंक्रीज होता है. इस तरीके के क्वेश्चंस जो है ये आएंगे आपको कंसेप्चुअल क्वेश्चंस में. So these are the numerical based questions. So we shall be taking about some problems to make you aware about such questions and how we can solve them. So पहला क्वेश्चन हम लेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 हम लेंगे, that is find the elevation in boiling point. Find the elevation in boiling point
if 1 mole of NaCl, if 1 mole of NaCl is dissolved in 500 grams of H2O, आपका के भी दिया हुआ है फॉर सॉल्वेंट कितना 0.52 केल्विन किलोग्राम पर मोल ये आपको दिया हुआ है ना। आपको पता है व्हाट द फॉर्मूला इज डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू एम इंटू आई। अब डेल्टा टी बी आपको निकालना है, सो के बी इज गिवन, व्हाट इज दैट 0.52 मल्टीप्लाई मोलैलिटी इज नंबर ऑफ मोल्स dissolved per kg of solvent, that means 1 divided by 500 into 1000। क्यों? बिकॉज मोलैलिटी किसके बराबर होता है, मोलैलिटी इज एक्चुअली इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट वेट ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम्स। अगर आप ग्राम में होगा तो मल्टीप्लाई 1000 करना है, ये आपको पता है। तो नंबर ऑफ मोल्स 1 है, ठीक। अब वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना है वाटर का 500 ग्राम्स, अब ये ग्राम में है तो मल्टीप्लाई 1000 करना है, मल्टीप्लाई आई इज वांट ऑफ फैक्टर फॉर NaCl, it gives 2 ions, so it is 2। ये जो आप सॉल्व करेंगे इट इज 0.52 मल्टीप्लाई ये 2 आएगा, ये भी 2 है, 2 to 4 and 4 multiply this will give you a value that's equal to 2.08 केल्विन। केल्विन में मैंने क्यों लिखा, बिकॉज आपका के भी जो है वो केल्विन में ही दिया हुआ था, केल्विन किलोग्राम पर मोल, दैट्स व्हाई इट कम्स आउट टू बी इन केल्विन 2.08 केल्विन। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। इतना एलिवेशन हुआ है क्योंकि एक्वस सोल्यूशन है, तो एक्वस मीडियम का वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है दैट इज 100 डिग्री सेल्सियस मीनस 373 केल्विन। तो 373 जो है आपको ऐड करना है इतना, तो दिस विल गिव यू द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 2 हम लेंगे, विल टेक क्वेश्चन नंबर 2। सो क्वेश्चन नंबर 2 इज 18 grams of glucose, उसका molecular weight है 180, is dissolved in 1 kilogram of water। Find boiling point of solution। Find boiling point of solution। आपका TB नॉट, फाइंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन KB आपको दिया हुआ है, KB is equal to 0.52 केल्विन किलोग्राम पर मोल। देखिए आप कैसे इसको सॉल्व करेंगे, आपको पता है डेल्टा TB is equal to KB into M into I। अब डेल्टा TB किसके बराबर है, आपको इस वक्त बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन निकालना है, तो यू राइट इट TB माइनस TB नॉट इज इक्वल टू KB into M into I। तो आपको TB निकालना है, TB नॉट इज गिवन, यहां पे तो कहीं दिख नहीं रहा है, लेकिन TB नॉट इज गिवन, क्यों? बिकॉज आपका जो सॉल्वेंट है दैट इज वाटर का बॉइलिंग पॉइंट आपको पता है दैट इज 100 डिग्री सेल्सियस मीनस 373 केल्विन। सो हम TB लिखेंगे बराबर, यह हम इधर डाल देंगे तो इट बिकम्स TB नॉट प्लस KB इंटू M इंटू I। नाउ TB विल बी इक्वल टू, TB नॉट के बदले हम लिखेंगे 373, बिकॉज जब KB का वैल्यू केल्विन में है तो आप TB नॉट भी लिखेंगे इन केल्विन। सो 100 डिग्री सेल्सियस आपको इसको ऐड करना है 273, तो ये बनेगा 373 केल्विन प्लस KB इज 0.52 मल्टीप्लाई M इज मोलैलिटी, नंबर ऑफ मोल्स, आपको मोल्स नहीं दिए, आपको वेट दिया हुआ है, सो इट इज वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट बाय सॉल्वेंट का मास दैट इज 1 kg, और मल्टीप्लाई 1000 नहीं करना है बिकॉज इट्स गिवन इन किलोग्राम्स, मल्टीप्लाई करना है I फॉर ग्लूकोज इज 1 बिकॉज इट्स नॉन इलेक्ट्रोलाइट। Glucose, sucrose or sugars and urea, they are having I equal to 1 because they are non-electrolytes. So TB will be equal to 373 plus, it will be 0.52 multiply 1 by 10, 18 1s are, it's 1 by 10, so it becomes 373 point plus 0.052, तो इसको ऐड करना है, it becomes 373.052 K। So this is how you can find the elevation in boiling point. This is the boiling point of solution. This is how you solve such problems. We'll take question number 3. Question number 3 हम लेंगे, आपके पास 6 grams of यूरिया है और
9 grams of glucose है, you have 6 grams of urea, 9 grams of glucose are dissolved in 300 grams of H2O. Find boiling point of solution. आपका solution का boiling point निकालना है. Kb दिया हुआ है 0.52 केल्विन किलोग्राम पर मोल. चूंकि सॉल्वेंट वाटर है तो बॉइलिंग पॉइंट तो वाटर का पता है, दैट्स 100 डिग्री मीन्स 373 केल्विन. So you can solve such problems like delta TB is equal to KB into M into I. अब TB minus TB not will be equal to KB into M into I. I is known, urea is non-electrolyte, glucose is non-electrolyte, so इन दोनों का वैल्यू 1 है. तो M is number of moles divide by weight of solvent. Number of moles इनको ऐड करना है आपको दोनों को, तो you will get this. हम ऐसे लिखेंगे TB will be equal to TB not, ये हम इधर डाल देंगे, पॉजिटिव बनेगा, प्लस KB इंटू M इंटू I, ये हम इस्तेमाल करेंगे यहाँ. सो TB विल बी इक्वल टू, TB नॉट के बदले हम लिखेंगे 373 प्लस KB इज 0.52 इंटू M इज मोल्स. यहाँ पे हम लिखेंगे M किसके बराबर होता है, M इज बेसिकली नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट. अगर ग्राम्स में होगा तो मल्टीप्लाई 1000 करना है. यू आर नोन अबाउट दिस. अब मोल्स सोल्यूट के 2 है. अब इसका टोटल मोल्स विल बी इक्वल टू मोल्स ऑफ यूरिया प्लस मोल्स ऑफ सोल्यूट, दैट इज वेट बाय मॉलिक्यूलर मास मींस 6 डिवाइड बाय 60 प्लस 9 डिवाइड बाय 180 होल डिवाइड बाय वेट, दैट इज 300, मल्टीप्लाई आएगा यहाँ 1000. क्योंकि ये यहाँ पे ग्राम्स में है, सो आपको मल्टीप्लाई करना 1000. मल्टीप्लाई 1 ही आएगा बिकॉज फॉर बोथ दिस एज वेल एज दिस दे आर नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स, सो I इज इक्वल टू 1. This will be equal to 373 plus 0.52 into, ये आएगा 1 by 10 means 0.1 plus ये आएगा 1 by 20 means 0.05 whole divide by 300. अब 0 तो कैंसिल हो जाएंगे, it will be 3 multiply 10. So this will be equal to 373 plus 0.52 into 0.15 divide by 3 इंटू 10. ये जो आप सॉल्व करेंगे दिस इज इक्वल टू, ये वैल्यू यहां पे निकल करके आएगा, दैट इज इक्वल टू 373.26 केल्विन. 373 इसका वैल्यू निकलेगा 0.26, वो आपको ऐड करना है. दिस विल गिव यू 373.26 केल्विन. दिस गिव्स यू बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन. I hope you understand this. Total moles आपको निकालने हैं. Moles equal weight by molecular mass. So weight of urea by molecular mass of urea plus weight of glucose by molecular mass of glucose divide by weight of solvent, that is 300. ग्राम्स में है तो मल्टीप्लाई 1000 करना है. मल्टीप्लाई I for both is 1. You solve it. इसका वैल्यू आएगा 0.26 आपको ऐड करना है 373 को, it becomes 373.26 Kelvin. This is the boiling point of solution. We'll take one more question. So question number 4 हमारे पास है. अगर आपके पास 20% यूरिया है, so 20% यूरिया and 20% यूरिया है आपके पास, आपको बताया जा रहा है फाइंड बॉइलिंग 20% एक्वस यूरिया सोल्यूशन आपके पास. 20% एक्वस यूरिया सोल्यूशन मतलब पानी में डाल के है यूरिया. फाइंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन मतलब TB आपको निकालना है. गिवन दैट KB इज इक्वल टू 0.5, यूनिट वही रहेगा केल्विन किलोग्राम पर मोल. तो इस वक्त क्या है आपको निकालना है TB. सो आपको पता है डेल्टा TB इज इक्वल टू बेसिकली KB इंटू M इंटू I. ठीक, अब TB माइनस TB नॉट इज इक्वल टू KB इंटू M इंटू I. इसका मतलब TB विल बी इक्वल टू TB नॉट प्लस KB इंटू M इंटू I. ये आपने इधर डाल दिया, पॉजिटिव बन गया, प्लस KB इंटू M इंटू I. अब देखिए TB नॉट इज गिवन, वाई? बिकॉज इट इज एक्वस यूरिया सोल्यूशन. जब एक्वस होगा तो पानी है, पानी का बॉइलिंग पॉइंट कितना है 100 डिग्री सेल्सियस मीन्स 373 केल्विन. KB इज गिवन 0.5, I इज गिवन फॉर यूरिया इट्स इक्वल टू 1, I इज इक्वल टू 1 फॉर यूरिया.
तो आपको क्या निकालना है, एम। एम के बदले आपको दिया हुआ है परसेंटेज। सो पहले आपको कन्वर्ट करना है परसेंटेज इनटू मोलैलिटी। आपको पता है 20% एक्वस यूरिया सोल्यूशन का माने है 20 ग्राम यूरिया आपने डिजोल्व करे हैं इनटू 100 ग्राम्स ऑफ सोल्यूशन, मतलब वेट ऑफ यूरिया दैट्स इक्वल टू 20 ग्राम्स, वेट ऑफ सोल्यूशन जो है दैट इज 100 ग्राम्स। दिस इंप्लाइज वेट ऑफ सॉल्वेंट जो है दैट इज इक्वल टू 80 ग्राम्स, मतलब 100 माइनस 20 is 80। सो वेट ऑफ सॉल्वेंट भी आ गया, वेट ऑफ यूरिया भी आएगा। जब वेट ऑफ यूरिया आ गया तो मोल्स ऑफ यूरिया आ गए, मोल्स बाय mass of solvent, that gives you molality. So you can put the value here. TB will be equal to 373 plus 0.5 multiply moles, मतलब weight by molecular mass that is 20 divided by 60 whole divided by weight of solvent that's 80 multiply 1000 because it's in grams multiply I is equal to 1 for urea. So after solving this you get 373 plus इसका वैल्यू आएगा आपका 2। ये जब सॉल्व करेंगे आप ये वाला पार्ट, इसका आएगा 2, तो दिस इक्वल टू 375 Kelvin. So this is how you can find the boiling point of solution is percentage is given. So changing concentration from one unit to another unit you can do it and find the value of boiling point or anything else. I hope you understand this. Now we shall be taking up one more question. एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लेंगे, क्वेश्चन नंबर 5, दैट इज फाइंड फॉर्मूला ऑफ अ मेटल क्लोराइड। ब्रैकेट में लिखा है ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, इट्स अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। फाइंड फॉर्मूला ऑफ अ मेटल क्लोराइड, आपके पास एक मेटल क्लोराइड है, उसकी फॉर्मूला आपको जाननी है, दिया हुआ ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक। इफ इट्स aqueous solution have a boiling point of 102 डिग्री सेल्सियस, तो आपको Kb भी दिया हुआ है दैट इज 0.4 एंड M भी दिया हुआ है दैट इज 1। मोलैलिटी इज गिवन 1, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन भी दिया हूं 102, आपको निकालना है फार्मूला। हमेशा याद रखना चाहिए, आपको पता है फार्मूला आपको निकलेगी फ्रॉम I, क्योंकि आपको पता है फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट I इज इक्वल नंबर ऑफ आयंस। इसका मतलब ये हुआ आप I निकालेंगे, I जब निकालेंगे तो आपको नंबर ऑफ आयंस निकलेंगे, अकॉर्डिंगली आपको फॉर्मूला निकलेगी। कैसे, देखिए डेल्टा TB इज इक्वल टू KB इंटू M इंटू I। सो डेल्टा TB एलिवेशन कितना हुआ है, देखिए ये एक्वस सोल्यूशन है, मतलब वाटर का कितना है बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री, सोल्यूशन का 102 डिग्री है सोल्यूशन का, तो एलिवेशन कितना है 2 डिग्री, मतलब डेल्टा TB इज 2, सो इट्स 2। KB कितना है 0.4, M कितना है 1 मल्टीप्लाई I, तो I कितना निकलेगा, दिस इंप्लाइज I विल बी इक्वल टू 5। जब I का वैल्यू आपको 5 निकला ये सॉल्व करके, इसका मतलब चूंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है इट्स गिवन, तो कितने आयंस है, विच मीन्स नंबर ऑफ आयंस कितने हैं 5। जब नंबर ऑफ आयंस 5 है तो एक क्लोराइड है और मेटल होगा एक, मेटल हमारे पास एक है, तो क्लोराइड कितने होंगे 4, बिकॉज टोटल आयन नंबर ऑफ आयंस आर 5, सो यू हैव 4 क्लोराइड आयंस एंड 1 मेटल आयन, ठीक है। तो फार्मूला विल बी MCl4, 4 क्लोराइड्स एक मेटल, हो गई 5 आयंस, सो वन इज देयर आर 5 आयंस। इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड है दैट्स MCl4। सो फॉर्मूला भी आप निकलेगी वंस यू फाइंड I। एक अच्छा क्वेश्चन हम दूसरा लेंगे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन क्या है, आपको आइडेंटिफाई करना है, आइडेंटिफाई वेदर solute undergoes dissociation or association in different solvents. The data is given as क्या हुआ है, एक सोल्यूट है आपके पास, वो अपने डिफरेंट सॉल्वेंट्स में डाल दिया है, ठीक।
डिफरेंट सॉल्वेंट्स में आपको जानना है क्या वो उनमें एसोसिएट होता है, डिसोसिएट होता है, क्या होता है। डाटा क्या दिया हुआ है, डाटा दिया हुआ है डेल्टा टी बी इज इक्वल टू 2, के बी इज इक्वल टू 5। दूसरा है डेल्टा टी बी इज इक्वल टू 1, के बी इज इक्वल टू 20। तीसरा है डेल्टा टी बी इज इक्वल टू 3 एंड के बी इज इक्वल टू 30। सो यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन इजीली। आपको निकालना क्या है, आई, बिकॉज फॉर एसोसिएशन और फॉर डिसोसिएशन आई कम्स टू रेस्क्यू। कैसे, अगर आई होगा ग्रेटर देन 1 तो डिसोसिएशन है, अगर आई होगा लेस देन 1 तो एसोसिएशन है, अगर आई इज इक्वल टू 1 तो नो एसोसिएशन और डिसोसिएशन। ये आपको पता है, तो आई आपको निकालना है। डाटा इज गिवन, सो डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू एम इंटू आई। इसका वैल्यू है 2, इसका वैल्यू है 5 इंटू, इसका वैल्यू कितना है, इसका वैल्यू m दिया हुआ है, दैट इज डिफरेंट सॉल्वेंट्स का मोलैलिटी दी हुई है, सॉरी मैंने लिखी ली नहीं, मोलैलिटी इज गिवन एज 0.1। हर एक सॉल्वेंट में सॉलिड का जो कंसंट्रेशन रखा है दैट इज 0.1 मोलर, सो इट इज 0.1 इंटू आई। तो आई निकलेगा आपका यहाँ, जब आप सॉल्व करेंगे, सो आई इज इक्वल टू 4। जब आई का वैल्यू 4 आ गया, मतलब आई इज ग्रेटर देन 1, तो डिसोसिएशन हो गया है। इसमें पहले वाले क्वेश्चन में डिसोसिएशन हो गया है। अब दूसरा हम लेंगे डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू एम इंटू आई। तो डेल्टा टी बी इज 1 इज इक्वल टू के बी कितना है 20, एम फिर अगेन है 0.1, इट्स फिक्स्ड फॉर ऑल। तो आई निकलेगा बराबर 0.5। जब 0.5 निकलेगा बराबर, मतलब ये कि आई इज लेस देन 1, इसका एसोसिएशन हुआ है। तीसरा हम लेंगे डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू एम इंटू आई। तो इट्स इक्वल टू 3 इज इक्वल टू 30 इंटू 0.1 इंटू आई। तो जब आप सॉल्व करेंगे आई विल बी इक्वल टू 1, तो नो एसोसिएशन और डिसोसिएशन इन थर्ड सॉल्वेंट। सो दिस इज हाउ यू सॉल्व सच क्वेश्चंस। सो अगर आपको आएगा कि आइडेंटिफाई वेदर अ सॉलिड अंडरगोज डिसोसिएशन और एसोसिएशन, आपको आई निकालना है। अगर आपको फार्मूला टाइप क्वेश्चन आएगा तो आपको आई निकालना है टू फाइंड द नंबर ऑफ आयंस, अकॉर्डिंगली यू विल गेट द फार्मूला। एंड आप निकाल सकते हैं boiling point of solution। अगर वाटर दिया हुआ है तो boiling point of solvent is given, that is 100 degree Celsius, you know that। So I hope you understand these numerical based questions। अब हम लेंगे एक दो questions conceptuals के। question number 7 हम लेंगे। The question is which is having maximum boiling point, which is having maximum boiling point। option A 0.1 molar NaCl, option B 0.1 molar sodium sulfate, option C 0.1 molar urea, and option D 0.1 molar Na3PO4 sodium phosphate। देखिए I told you since the concentration is given, since the concentration is same throughout, so जितना आप I increase करेंगे उतना boiling point of solution B maximum होगा, increase होगा। so इसका I value 2 है because it gives 2 ions। इसका I value जो है 3 है because sodium 2 है, sulfate 1 है, it's 3। इसका I value 1 है because it's non electrolyte। इसका I value जो है सोडियम 3 है, फॉस्फेट 1 है, मतलब 4 आयन है। सो मैक्सिमम I value इसका है, तो इसका जो है बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा। एक और क्वेश्चन हम लेंगे, क्वेश्चन नंबर 8, दैट इज मैक्सिमम बीपी किसका है, मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट किसका है। ऑप्शन ए 0.1 मोलर यूरिया, ऑप्शन बी 0.1 मोलर सोडियम सल्फेट, ऑप्शन सी 0.1 मोलर अलम, ऑप्शन डी 0.1 मोलर सोडियम फॉस्फेट। देखिए सब कंसंट्रेशन सेम है, तो इट डिपेंड्स ऑन आई। जितना आई एफ इंक्रीज करेंगे उतना जो है बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज होगा। तो इसका आई वैल्यू 1 है, इसका आई वैल्यू जो है इट इज 3, इसका आई वैल्यू 4 है। अलम्स का आई वैल्यू सबसे मैक्सिमम हुआ करता है, क्योंकि एक अलम हमारे पास है मोरू साल्ट, आपको पता होगा, या पोटैश अलम है आपके पास, मोरू साल्ट हमारे पास है, या पोटैश अलम है आपके पास, पोटैश अलम दैट इज पोटेशियम सल्फेट, एल्यूमिनियम सल्फेट, उसको बोलते हैं पोटैश अलम। पोटैश अलम है आपके पास एग्जाम्पल। सो पोटैश अलम इज पोटेशियम सल्फेट, एल्यूमिनियम सल्फेट Al2, SO4 whole 3 and
x टाइम्स वाटर है आपके पास, सो इट गिव्स यू पोटेशियम 2, सल्फेट 1, 3 सल्फेट यहाँ से, 3 सल्फेट और 1 सल्फेट हो गया 4 सल्फेट, 4 सल्फेट आयंस है, और यहाँ पे है अल्मोनियम 2 और पोटेशियम भी 2, 8 आयंस देता है। इट गिव्स 8 आयंस, मीन्स आई इज इक्वल टू 8। सो मैक्सिमम आई होता है अल्मस का, सो अल्मस का मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट होगा। I hope you understand the numerical based questions as well as the conceptual based questions। अगर आपका concentration इस वक्त different होगा तो आपको निकालना है उस टाइम जितनी concentration जिसकी ज़्यादा होगी उतना जो है आपका elevation in boiling point भी ज़्यादा होगा। I hope you understand this। If you like my videos, please do share and subscribe my channel। Thank you very much।